Hi, all learners. Market में is full of opportunity and at the same time, no, many traps are also there. The problem is when we are looking at a equity market, we are only thinking this is only asset class where all are investing. It is not true. Market was in a expensive territory. If you look, the market cap to GDP was at a 1.68% level एंड मार्केट जनरली आप अगर देखोगे कि उस 1.5 1.6 जो भी टेरिटरी में था मार्केट कैप टू जीडीपी इट वाज एट अ एक्सपेंसिव लेवल नाउ क्लोज टू 1 एंड हिस्टोरिकल लो इज अराउंड 0.59 नो नाउ अभी जो वैल्यूएशन ऊपर चला गया था मार्केट में तो वैल्यूएशन तो ऊपर जा सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बट वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं था वैल्यूएशन अगर जस्टिफाइड होता तो हो सकता है कि वो जस्टिफाइड वैल्यूएशन भी आ जाता मार्केट ऑलवेज कम टू द मीन क्योंकि देखो अब बहुत सारे कंपनी भी लिस्टिंग हो रहे हैं उसका ग्रोथ भी हो रहा है तो उसके साथ साथ वो ग्रोथ प्रोपोर्शनल ग्रोथ था नहीं था बहुत जगह पे ऐसा था एक ही कंपनी लिस्टिंग होके आ रहा है एक साल में 7-8x हो रहा है कंटिन्यूअसली गेटिंग ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का कोई नाम नहीं है सिर्फ ऑर्डर आ रहा है ऑर्डर का न्यूज आ रहा है stock is making a 10x 20x return so I'm not saying those are trap or something but how you can be so sure no unless you can take early entry and take an exit again no one is wrong or right in stock market it's all about who has taken Tata Motors at 1,000. They'll be saying they are also owner of a Tata Motors. They will not make money. Only ownership will not help you to make money. It's all about no. Only momentum trading will not help you to make money always. You need to be very good. When you are investor, do a good negotiation. When you are trading, trade like a champion. Like you should have your best setup to trade. Now you want to trade about a 10-20% in a multi-bagger stock, you want to scalp, that is up to you. But if you are a good investor, your entire focus should be for identifying one good business which can remain in a trend for a long, long time. At least for a 1 or 2 years. Now, market may discount that 1 or 2 year time. If you are seeing that GDP has not grown, the profit has not grown 10x, but price has grown 10x, 5x, then you should book no matter what. कि आपको growth, still you are looking at a growth. Fine, don't look at growth that time. You got the reward. Whatever you have expected, देन यू मे से कि इसके बाद क्या ग्रोथ नहीं आएगा ग्रोथ आएगा यार ग्रोथ क्यों नहीं आएगा ग्रोथ के साथ साथ वो प्राइस में डिस्काउंट हो गया है वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं पे मिसिंग हो जाता है लोगों का कि वैल्यूएशन आप इनिशियल फेज में एक नेगोशिएशन करके लेते हो देन व्हेन इट ग्रोज फॉर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ वन पर्टिकुलर बिजनेस इट मे ग्रो से बट नाउ कंपनी इज अवेलेबल at a 20x of operating profit to market cap even after a 50% उसका करेक्शन हो गया है तो इसका 1500 करोड़ में चला गया था एंड 1500 करोड़ से आप 50 करोगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 30 years सो 30 years में आप रिकवर करते हैं अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपने पैसा डाला है नाउ थिंक अबाउट अ डिफरेंट सिनेरियो now the company is at a 20 crore operating profit. The market inflow of money is happening because whenever we make money in a cycle. We lose money in a cycle. Whenever somebody will lose, no matter. Only thing is when money is wiping out from the market. Wait for the trend. Wait for the cycle. Wait for the money flow. मनी जब तक लेके जा रहा है तो सारे अच्छे बुरे सारे स्टॉक गिरेंगे और गिरते जाएंगे एंड यू मे नॉट डूइंग a SIP mode investment you are doing a lump sum so your money supply will be
विल नॉट बी देयर। स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लेवल में आ जाएंगे और उस टाइम में आपके पास पैसा नहीं होगा। तो मार्केट में पैसा जब भी बनता है ना, दो जगह से बनता है। एक तो मैंने बोला आपको अच्छा नेगोशिएशन करना है, और मनी जब इस तरीके का वैल्यूएशन का स्ट्रक्चर आप पकड़ लो। आपने जब एंट्री लिया है तब इस जगह पे थे आप, वैल्यूएशन एट्रैक्टिव जोन में था, तो वहां से ओवर वैल्यूड जोन में आप ये जो टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहे थे कि ये 5 इयर्स में होगा, फाइन, ये आपका, आप यू आर डिसाइडिंग कि दिस बिजनेस शुड रन, डू गुड नेक्स्ट 5 इयर्स, और वो 5 ईयर के जगह पे एक ही साल में उतना ही रिवॉर्ड दे दिया, इकोनॉमी ग्रो नहीं किया, प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं किया, टॉप लाइन उतना ग्रो नहीं हुआ, बट वो प्राइस एप्रिसिएशन हो गया, तब भी आप 5 साल अगर रुकोगे, हो सकता है कि आपका 50% वो प्राइस नीचे आ जाए, फिर से वो 50% एक साल बाद ऊपर जाए। सो यू आर लूजिंग 2 इयर्स। बस क्या कर रहे हो कि आपने ये वैल्यूएशन को अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है। यू कैनॉट प्रिडिक्ट एवरी टाइम के रिजल्ट अच्छा आएगा खराब आएगा, क्या हो गया है। वंस यू गेट रिवॉर्डेड विथ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट के 10x हो गया है, मैंने 1x में डाला था, वो 10x हो गया है, यू शुड लुक एट कि ये क्या उतना ही ग्रो किया है प्रॉफिट, नहीं। तो वो सारे चीज मिसिंग था मार्केट में। एंड वेन एवर वी थिंक एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट कि मेरे लिए तो इक्विटी मार्केट ही सब है, किसी कोई सोच रहा है कि इक्विटी मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, मार्केट कहीं नहीं गिर रहा है, पैसा किसी एक पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट से निकल रहा है, शायद चाइना का इक्विटी मार्केट जो कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है अभी, उसमें जा रहा है। एंड डेफिनेटली अगेन, जहाँ पे पैसा एक बार गया है वो पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करेंगे 1-2 साल डेफिनेटली। तो चाइनीज मार्केट विल डू गुड अगेन। इट China is a very volatile in terms of many things, many news can come. So it is just my understanding, मनी फ्लो वहाँ पे है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, हो सकता है उस साइड में आपका वो मनी फ्लो वहाँ पे पार्क हो जाए। इंडिया भी अभी बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव जोन में है बिजनेस स्पेसिफिक। और क्या क्या चीज़ आपका ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है? गोल्ड विच इज गिविंग फैंटेस्टिक रिटर्न, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पीपल थिंक दैट कि नहीं, मुझे ना जितना 1900 to 2000, मतलब लास्ट 100 साल से यूएस ने सबसे ज्यादा उसके पास रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड एज अ रिजर्व, वेयर एज इंडिया इज हैविंग ओनली 1/10 पोर्शन ऑफ अ गोल्ड रिजर्व। तो इतना आपके मतलब गोल्ड, यूएस का डी डॉलराइजेशन होगा तो यूएस विल फोकस ऑन ने मुझे तो गोल्ड को कलेक्ट करना है। अगर किसी एक लिमिटेड चीज के ऊपर किसी का फोकस हो गया कि मुझे ये तो कलेक्ट करके पूरा मेरे पास रखना है, तो डेफिनेटली द प्राइस इज गोइंग टू शूट। दैट ट्रेंड वी आर लुकिंग एट कि गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, चाइनीज मार्केट रिलेटिवली सस्ता है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं पे फ्लैश होगा। ये दो रीजन है। अगर मार्केट कहीं पे आपका गिर रहा है, थर्ड कि वी डोंट नो कि कब साइकिल एंड होगा, 10 गुना 20 गुना हो गया है तब भी मैं पैसा उसमें अगर बैठा हूँ कि यू टेक एन एग्जिट फ्रॉम अ वन राउंड, वन पर्टिकुलर राउंड यू हैव डन अ नेगोशिएशन, एक राउंड से आप सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आपका कुछ टाइम स्पैन होगा कि मैं 5 साल में देख रहा हूँ। आप अगर एक साल में उतना, 2 साल में इतना कंपाउंडिंग कर सकते हो कि 20x, ये तो कोई 10-10 साल में नहीं करता है। आपको अगर कोई एक बिजनेस 2-3 साल में उतना दे दिया है तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट। वो कहीं पे मिसिंग था, लोग पैसा बना रहे थे, लोग पैसा बना रहे थे, एक टेलविंड चल रहा था 2-3 सेक्टर में, उससे पैसा बन रहा था। अभी जब टेलविंड हेडविंड में या लो एलोकेशन में कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें तो थोड़ा आपको, अभी उसमें भी आप फिर से मतलब कंटिन्यूअसली इफ यू फाइट अगेंस्ट द मार्केट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। You need to readjust yourself. Okay, what are the emerging trend? Even if it is taking a pause, then I should not be very aggressive. Let
The results speak. Based on a result, I will take my action. People are giving operating profit से 50x 30x का वैल्यूएशन, जहाँ पे आपको 50-50 साल लग जाएंगे। एक बिजनेस को बोला जाता है कि बिजनेस अंडर वैल्यूड। आप कैसे सोचोगे? आप अगर मेरे साथ ही एक बिजनेस का डील कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 1000 करोड़ का कंपनी है, और मैं आप बोलो कि प्रॉफिट कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 100 साल लग जाएगा आपको। आप भी नहीं देख पाओगे, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं देख पाएगा। तो आप उस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं। बट मार्केट में कोई देख ही नहीं रहा है कि शायद आपने जब लिया था वो बिजनेस का वैल्यूएशन, और एक चीज हो रहा है कि आप फिर से रिव्यू नहीं कर रहे हो। कि रिव्यू फिर से नहीं देख रहे हो। क्या नहीं देख रहे हो? वॉट यू आर नॉट लुकिंग एट वेन यू आर टेकिंग अ बिजनेस एट अ मे बी 10x वैल्यूएशन। मार्केट कैप जितना है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 10 साल में हो जाएगा रिकवर। अभी जब वो पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा वैल्यूएशन में चला गया पे जहाँ पे 50 साल लगेगा, तब भी आप उस बिजनेस में ग्रोथ ग्रोथ बोल के बैठे हो। का इनिशियल थ्योरी क्या था? कि 10x का वैल्यूएशन में वो सस्ता है, तो 50x का वैल्यूएशन में कैसे सस्ता हो गया? तो अभी महंगा हो गया, तो आपको निकल के आ जाना चाहिए। सो पीपल आर नॉट डूइंग इट नाउ। The point is whether this one is valuation part, another one is a company doing a bad result. उस टाइम में आपको ये भी सोचना है कि अगर कंपनी बैड रिजल्ट कर रहा है, वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस रिपीटेटिव बैड रिजल्ट विल कम, और इट इज अ टेम्पररी 1 or 2 months थिंग। वहां पे आपका फर्स्ट नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। आपने क्या वैल्यूएशन दिया है, आपने जो भी दिया है। अगर कंपनी सोचो कि 10x का वैल्यूएशन में आपने दिया था, या थोड़ा ओवर वैल्यूड, मार्केट अच्छा चल रहा है आपने थोड़ा दे दिया था, मार्केट में अभी थोड़ा 1-2 क्वार्टर का उसका डेंट आया है, तो मार्केट अभी 15x भी नहीं दे रहा है, 10x भी नहीं दे रहा है, 7-8x में आ गया है। तो उसमें अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कैन अगेन डू गुड and again come back, what you are going to do? So you will be staying invested कि नहीं बिजनेस तो ठीक है, चलो 2 क्वार्टर का खराब गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसी ट्रेंड में चलेगा, तो आप उससे एग्जिट लोगे, क्योंकि आपका जो इनिशियल थ्योरी था, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इज नॉट कमिंग, वैल्यूएशन इज गेटिंग एक्सपेंसिव। जो 10 करोड़ का प्रॉफिट में 100 करोड़ का मार्केट कैप का स्टॉक आपने लिया था, वो आज के दिन में 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, और मार्केट कैप 100 करोड़ ही है, तो 50 साल लग जाएगा आपको वहीं पे। अगर उसका ट्रेंड कंटिन्यू 2-2 करोड़ का ही चलता रहा, और आपको अगर ये लगता है कि नहीं ये 2 करोड़ से फिर से 10 करोड़ हो जाएगा, तो वैल्यूएशन भी वैसे मल्टीप्लाई करके वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं पे हम लोगों का मार्केट में मिसिंग था। मार्केट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहीं कहीं जगह कुछ भी 100 गुना, 100 साल लग जाएगा, इस तरीके का बिजनेस में वैल्यूएशन चल रहा था। नए नए कंपनी 10-10 गुना भाग रहे हैं। तो वो तो होना ही था जो आप वी आर just now witnessing. At the same time, when money comes in a market, we make money. When money flash out from a market, say we lose money. When trend changes, if you are getting lot of business, सोचो ना, 3 years में market has given a tremendous opportunity to make money. Now, if some of the businesses, you have done a clueless investment, कहीं पे कुछ रिजल्ट खराब आ गया है तो उसके लिए डाउन है, आपको उसको रिव्यू करो कि आपने कहीं पे ज्यादा पैसा तो नहीं दिया है उसमें, और उसमें वैल्यूएशन सही है। इफ वैल्यूएशन इज राइट, योर थीसिस इज राइट, आपने सनराइज सेक्टर में किया है, 2-3 साल में काम होगा, एवरीथिंग कम इन अ प्लेस। आपको ये देखना है कि वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही वैल्यूएशन के साथ, मार्केट कैप टू वैल्यूएशन के साथ देखो कि वो हो सकता है कि आगे जाके कौन कॉल पढ़ो, उसका रिजल्ट देखो क्या क्या अनाउंसमेंट आ रहा है। तो ऐसे ही देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट में ज्यादा मतलब गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? अगेन मार्केट कैप टू जीडीपी इन यूएसए इज वेरी हाई, 2 के पास है, 1.9 के पास है। जब तक वो 1 के पास नहीं आ जाता है, 1.20 के पास नहीं आ जाता है, हो सकता है कि मार्केट अगर यूएस मार्केट गिर भी जाए, हो सकता है कि इंडियन मार्केट उतना रिएक्ट ना करे, क्योंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी इन अ न्यूट्रल जोन। So this is my thing. At the same time, good and bad, overvalued businesses are also there.
undervalued business are also there. We need to find out which are the business are putting a very good result consistently, and if any businesses have posted a bad result, we need to reevaluate कि ये परमानेंट उसका सैचुरेशन है या टेम्पररी सैचुरेशन है। ये सारी चीज अगर हम लोग प्रॉपरली फोकस करके देखेंगे, देन इट इज एब्सोल्युटली यू विल बी फाइन विथ योर लॉजिक एंड ऑल। और कभी भी आप ऐसे मत देखो कि इक्विटी में ही पैसा आ रहा है। बिटकॉइन देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन में पैसा डालो, आई एम टॉकिंग अबाउट किस इतने सारे ऑप्शन हैं एक बड़े इन्वेस्टर के लिए। तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई एक बिजनेस बहुत सस्ता है, बिजनेस की तरह देखो कि इंडियन मार्केट इज अ बिजनेस प्लेस, इट इज एक्सपेंसिव। सो व्हाट एज अ बिजनेसमैन यू विल डू, यू विल पार्क योर मनी इन एक्सपेंसिव प्लेस और यू विल कीप एन आइडल। कि प्रॉफिट बुक कर लोगे, अगर अपॉर्चुनिटी चाइना मार्केट में दिख रहा है वहां पे जाओगे, बिटकॉइन में दिख रहा है वहां पे जाओगे, बॉन्ड में सेफ्टी मिल रहा है वहीं पे जाओगे। सो मार्केट money will shift from a one sector to another sector, one asset class to another asset class. Only we need to evaluate कि are you paying a right valuation। बहुत सारे स्टॉक था जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू मार्केट कैप में 50-50 गुना में चला गया था, कुछ भी बिजनेस नहीं, कुछ भी पैट नहीं है, बट हम लोग कुछ भी वैल्यूएशन दे रहे थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट हाउ टू इवेलुएट बिजनेस, ग्रोथ हो या सिक्लिकल हो, जो भी हो, उस हिसाब से आपका टर्न अराउंड स्टोरी हो, कहाँ पे आपको जाना चाहिए एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर। वो सारे चीज़ को लेके एक सीरीज बनाऊंगा, उसको आप लोग थोड़ा देखना। कि अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ लाइक इफ यू हैव लर्न समथिंग, so do let me know in comments।